Good evening, students. Now, in the last class, we discussed about the Coulomb's law of electrostatic. And Coulomb's law of electrostatic states that when two different point charge Q1 and Q2 are separated by a finite distance, then the force of attraction or force of repulsion between these point charges is given by K Q1 Q2 by R square, or it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. That is a expression of force experienced by electric charges. Now today we'll discuss the next topic of this unit, vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Now, as we discussed in the Coulomb's law of electrostatic, when two point charges are separated by a finite distance r, then they experience either force of attraction and force of repulsion, and that force of attraction or repulsion is always along the line joining the charge particle. If these two charges are of opposite polarity, then the force experienced by 1 due to 2 or force experienced by 2 due to 1 are equal and opposite. Similarly, if these two charges are of same polarity, then both will repel each other. Then the force experienced by 1 due to 2 is this, and force experienced by 2 due to 1 is this, is in opposite direction. मतलब क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को repel कर रहे हैं. इस केस में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये so the force is always along the line joining the particles or line joining the charges. So basically in this article what we have proved that Coulomb's law of electrostatic basically follow the Newton's third law of motion. Each action has an equal and opposite reaction. That thing we have proved in this article. Yani F12 is equals to minus of F21. Means this Coulomb's law of electrostatic basically follow the Newton's third law of motion. That each action has an equal and opposite reaction. That we have proved mathematically in this article. So now what is the actual situation in this article? 2 point charges Q1 and Q2 have their own position vector. This is suppose if I am taking an xy plane. Now position vector of Q1 is R1 and position vector of Q2 is R2 with respect to origin. R1 is what? R1 is position vector of Q1 and R2 is position vector of Q2. Now as we join Q1 and Q2, so either these two, suppose if I am taking it that these charges are opposite polarity, so both will attract each other. The force experienced by 1 due to 2, that is like that, यानी ये point charge Q1 जो है इसके through Q2 की तरफ attract हो रहा है, और force experienced by Q2 due to 1, then Q2 is attracted by Q1. तो force जो होगा that will be is from Q2 to Q1. So now what is a F12? That is force on charge Q1 due to Q2, और F21 क्या है, force on charge Q2 due to Q1. Now we find the expression of F12 and F21 by using the Coulomb's law of electrostatic. That is F is equals to K Q1 Q2 by R square. इस लॉजिक को यूज करके हम वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. बट बिफोर कैलकुलेटिंग दिस expression, we define two displacement vector R21, that is displacement vector
from Q2 to Q1, R21 is R1 minus R2। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, और Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज योर R2 एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर इज R1। दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 to Q1। R21 is what? Displacement from Q2 to Q1। next displacement vector is R12। R12 is displacement vector from Q1 to Q2। your final position vector is R2 and initial position vector is R1, that is R2 minus R1। so R21 is displacement vector from Q2 to Q1, यानी R2 से R1 आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर R2 है, फाइनल पोजीशन वेक्टर R1 है। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और R12 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, दैट इज R2 minus R1। योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज R2। नाउ वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ F12। F12 is what? F12 is force on charge Q1 due to Q2। मतलब चार्ज Q2 जो है वो Q1 पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर R21 कैप। अब यहाँ जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, जो पोजीशन लिखी, वो क्या लिखे है, R21, because the force is experienced by Q2 whose position vector is R2 and on the charge Q1 whose position vector is R1। तो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है R1 और इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R2। ना R21 is R1 minus R2, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को हम किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। K Q1 Q2 अपॉन R21, ये यूनिट वेक्टर को हमने कैसे लिखा, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो ये मॉडुलस का स्क्वायर है, ये मॉडुलस है, सो इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस होल क्यूब R21 वेक्टर। So the force on 1 due to 2 is K Q1 Q2 upon, now R21 that we have written R1 minus R2। तो R1 minus R2 modulus whole cube vector R1 minus vector R2। So that is the expression of the force experienced by Q1 due to Q2। Now we calculate the expression of F21, that is force on charge Q2 due to Q1। Force on charge Q2 due to Q1, so force is exerted by Q1, so initial position vector is R1 and final position vector is R2। so F21 is K Q1 Q2 upon R12 मॉडुलस का स्क्वायर R12 कैप। यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या लिया, R12। यहाँ हमने R21 लिया था, यहाँ हमने लिया R12। सो F21 इज K Q1 Q2 अपॉन R12 मॉडुलस का स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉडुलस। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो ये हो गया F21 इज K Q1 Q2 अपॉन R12 मॉडुलस होल क्यूब, ये वेक्टर R12। अब इसको आज एक्सपांशन हम करेंगे तो R12 क्या है, बेसिकली R12 इज
R2 minus R1. Final position vector is R2, initial position vector is R1. तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 upon R2 minus R1 modulus का whole cube R2 minus R1. Now that is the expression of F21. Now as we observing these two expression, as we examine these two expression, numerator देखिए दोनों का K Q1 Q2 K Q1 Q2. Now R1 minus R2 modulus और R2 minus R1 modulus दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस का मॉडुलस है दैट विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम और इसका होल क्यूब भी सेम रहेगा. नाउ दिस इज द वेक्टर R1 minus R2 and this is the vector R2 minus R. So that expression is opposite. So which proves that F12 is equal and opposite to the F21. So that mathematical relation proves that the Coulomb's law of electrostatic follow the Newton's third law of motion. So that is a vector form of Coulomb's law of electrostatic. Is that clear? Next. Now, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. That is governed by a principle of superposition. Now, what is the situation in this article? Suppose we have a system in which n number of charges, n number of point charges are present, which have their own position vector with respect to the reference point. Origin के respect में अलग अलग चार्जेस के अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4, इसी तरीके से Qn. All these charges has their own position vector R1, R2, R3, R4 and Rn with respect to reference point. Now we are taking a one test charge Q0 which have their own position vector R0 with respect to origin. अब यहाँ एक टेस्ट चार्ज हमने प्लेस किया Q0 और इस Q0 का पोजीशन वेक्टर क्या है R0. Now we are interested to calculate the net force experienced by this Q0 by all other charges which are present in the system. We are interested to find out the net force on the Q0. इस Q0 चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है. What will be the net electric force experienced by this Q0 which is surrounded by the n number of charges. So principle of superposition states that net force experienced by any other charge, net force experienced by any charge due to the other charges present in the system is equals to the vector sum of all the forces experienced या exerted by individual charge on that test charge. हर एक चार्ज मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn ये सारे चार्जेस इस Q0 पर जो फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स एक्सर्ट करेंगे उन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा that vector sum will be equals to the net force experienced by this Q0 charge. So the net force experienced by any charge due to the other charges of the system, due to the multiple charges of the system is equals to the vector sum of individual forces exerted by individual charges. So F0 is equals to F01 vector sum, F02 plus F03, F0n. So net force is vector sum of all the individual forces exerted by individual charge on that test charge.
F0 इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n, इनका वेक्टर एडिशन करना है। क्या करना है? वेक्टर एडिशन। नाउ what is the expression of F01? F01 is K Q1 Q0 upon R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट कैप, क्योंकि फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q0, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा R1 क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा R0, तो यहां हमने लिखा R1 नॉट कैप, दैट इज R0 माइनस R1। इसी तरीके से F02 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 Q0 अपॉन R2 नॉट वेक्टर का स्क्वायर R2 नॉट कैप। सिमिलरली इसी तरीके से हम F0 नॉट कैलकुलेट करेंगे, तो K Qn Q0 अपॉन Rn नॉट मॉडुलस का स्क्वायर Rn नॉट कैप। व्हेन वी एडेड वेक्टरली, इनका वेक्टर एडिशन करें तो F0 क्या हुआ? K Q0 कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1 नॉट मॉडुलस का स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस Q2 अपॉन R2 नॉट मॉडुलस का स्क्वायर R2 नॉट कैप। सिमिलरली Qn अपॉन Rn नॉट कैप, Rn नॉट मॉडुलस का स्क्वायर Rn नॉट कैप। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? K को लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट समेशन ऑफ Qi अपॉन R n नॉट या R I नॉट मॉडुलस का स्क्वायर R I नॉट कैप, और I की वैल्यू कहां से कहां करेगी? वेरी 1 to n के बीच में। I की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? 1 to n के बीच में। सो दैट इज द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आपके सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं, तो मल्टीपल चार्जेस में किसी एक चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस की वजह से क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो फोर्स आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल बाय टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। Now first question, we are taking 3-point charges of equal magnitude placed at the vertices of a equilateral triangle of side A. We are taking 3-point charges of equal magnitude placed at a vertices of a equilateral triangle of side A. ये side A है, ठीक है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए। नाउ अनदर टेस्ट चार्ज Q0 is placed at the centroid। कहां हमने प्लेस किया? इस पॉइंट O पर प्लेस किया, which is the centroid of a triangle, ठीक है। सो कैलकुलेट the net force experienced by Q0 due to all 3 other charges। बाकी 3 चार्जेस की वजह से इस Q0 पर नेट फोर्स कितना होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो अब now we using the principle of superposition। so principle of superposition क्या बोलता है? that net force on the charge present at O is equal to the vector sum of all the forces which are exerted by all 3 other charges। तो ये पॉइंट A लोकेट कर लें, ये B लोकेट कर लें और ये C लोकेट कर लें। तो that is force on O due to A plus force on O due to B and force on O due to C। इन तीनों फोर्सेस का क्या कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर समेशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर समेशन। तो सबसे पहले इन तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीनों चार्जेस की सेंटर
प्रेजेंट जो चार्जेस है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओ ए ओ बी और ओ सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओ ए ओ बी ओ सी की कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ सेपरेशन में इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए ये आपका सेंट्रॉइड है, यहाँ ओ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया बेस BC पर, तो ये प्रोजेक्शन आपका कहाँ आया, D पर आया, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ, ये A/2। अब आपको ये जो ट्राइंगल ABD दिख रहा है, ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है AD। तो AD क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AD क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। ये हाइपोटेन्यूज क्या है, A है, और ये आपका बेस जो है वो क्या हो गया, A/2। तो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, तो AD की वैल्यू हो गई √3A/2। कैसे आया देखिए, ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 3A स्क्वायर बाय 4, इसका रूट लिया तो AD की वैल्यू आ गई √3A/2। ये आपकी AD की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द OA या फिर AO। तो OA की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ OA इज, देखिए सेंट्रॉइड जो है वो इस परपेंडिकुलर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो आपका OA का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2/3 ऑफ AD। ये वाली सेगमेंट है, ये वाली सेगमेंट टोटल लेंथ की 2/3 होगी, तो OA हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। तो OA की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू AD की वैल्यू √3A/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल बी A/√3। तो आपका OA, OB और OC इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम A/√3। क्या आ गई, A/√3। ये ज्योमेट्रिकली हमने डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है F01 या F0A, 0B और 0C। तो FOA हमने कैलकुलेट किया, मॉड्यूलस कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, डायरेक्शन नहीं, अभी सिर्फ मॉड्यूलस। K Q0 अपॉन A/√3 का स्क्वायर, क्योंकि इससे डिस्टेंस OA है और OA की डिस्टेंस A/√3, तो हो गया 3K Q0 बाय A स्क्वायर। सिमिलरली OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, FOB की वैल्यू K Q0 अपॉन A स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये OB की डिस्टेंस भी A/√3 है। और इसी तरीके से FOC भी कितना आ जाएगा, K Q1 Q0 अपॉन A स्क्वायर, 3K Q0 बाय A स्क्वायर। यानी आपका FOA, FOB and FOC, all these three forces are equal in magnitude, but their line of action is different. Line of action different क्यों है, अब पहले हम डायरेक्शन अब चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब डायरेक्शन देखिए ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 ड्यू टू Q दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आपका हो गया F0A। ये इसको रिपेल करेगा तो F0A की वैल्यू ये आएगी, ये इसको रिपेल करेगा तो F0B, ये F0B, और ये इसको रिपेल करेगा तो दैट इज F0C। यानी ये FOC हो गया, ये FOB हो गया और ये FOA हो गया। तीनों आपके कॉन्करेंट फोर्सेज आए। मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये आपका सेंटर O, ये आपका हो गया FOA, ये आपका FOB और ये आपका FOC। ये तीनों फोर्सेस आ गए। अब ये एंगल आपका 120, ये भी 120 है और ये भी 120 है, और तीनों के मैग्नीट्यूड हमने अभी कैलकुलेट किए, F और F कैलकुलेट किए। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि भाई, या तो आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर लें, लैमिस थ्योरम से भी आप क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लैमिस थ्योरम हम यूज नहीं करके हम यहाँ इन दोनों फोर्सेस का पहले इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ये दोनों 120 पर इंक्लाइंड है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसका इक्विलिब्रियम ले लिया f डैश, और ये वैल्यू ली f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120। तो f डैश की वैल्यू कितनी आई देखिए, f डैश इज इक्वल टू 2f स्क्वायर
प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, सो दैट वैल्यू कम्स f स्क्वायर, और f स्क्वायर की वैल्यू f, तो f डैश की वैल्यू क्या आ गई f, तो ये f डैश को ज्योमेट्रिकली मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ f। अब देखिए ये जो f है और ये जो f है, दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये f और ये f दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q naught charge is 0. When we calculate its vector addition, that force comes 0. So the net force experienced by the charge which is placed at the centroid of a triangle is 0. तो यहाँ हमने क्या किया, तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन किया और वेक्टर एडिशन करके हमने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट किया। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। So by using the principle of superposition, we have calculated the forces between multiple charges. Is that clear? चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a equilateral triangle of side 10 meter and D is a midpoint of BC. अगेन आपको दिया ABC is a equilateral triangle of side 10 meter, ये 10 मीटर है, यानी AB, BC और CA तीनों 10 मीटर दिए हैं आपको, ठीक है, और D आपका मिड पॉइंट है, तो आपका BD जो हो जाएगा वो हो जाएगा BD और CD दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। नाउ द चार्जेस ऑफ प्लस 100 माइक्रोकूलम, माइनस 100 माइक्रोकूलम एंड प्लस 75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B, C एंड D। पॉइंट B पर प्लेस है 100 माइक्रोकूलम, पॉइंट C पर है माइनस 100 माइक्रोकूलम, और पॉइंट डी पर जो है वो है प्लस 75 माइक्रोकूलम। नाउ कैलकुलेट द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए। यहां पॉइंट ए पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज थ्रू दीज 3 चार्जेस। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए, vectors addition of 3 forces exerted by these 3 charges on that single charge। तो फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी एंड वी कैलकुलेट देयर वेक्टर एडिशन, ठीक है। नाउ फर्स्ट टू कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वी कैलकुलेट द डायरेक्शन। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो बोथ द पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60, तो इन दोनों के ये बीच का एंगल 120 होता है, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर है, तो ये 60 ये 120, और ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ना फोर्स ऑन एडी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू, तो तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन आ गई, उनकी लाइन ऑफ एक्शन पता चल गई। नाउ वी कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मॉड्यूलस होगा के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू ए की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्यू बी की वैल्यू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन ए बी का वैल्यू है 10 इंटू 10, ए बी का स्क्वायर 10 इंटू 10,
ये हो जाएगा 9 इंटू, अब ये देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, दैट इज 10 to the power minus 3, 9 into 10. Now we calculate force on A due to C, that is K QA QC upon AC square, that is 9 into 10 to the power 9 into 1 into 10 to the power minus 6 into 100 into 10 to the power minus 6 upon 10 into 10. So same 100 cancel हो जाएगा, so that is 9 into 10 to the power minus 3 Newton, and that is along A to C. Now we calculate force on A due to D, that is K QA QD upon AD का स्क्वायर. Now AD is unknown, तो AD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम AD कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए AD is perpendicular of this triangle ABD, so that is under root of AB square minus BD square, so that is 10 square minus 5 square, क्योंकि BD की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 10 है, तो that is 100 minus 25, तो AD is root 70. AD का वैल्यू क्या आ गया, root 70. So now 9 into 10 to the power 9 into 1 into 10 to the power minus 6, that is 75 into 10 to the power minus 6, क्योंकि देखिए ये 100 माइक्रोकूलम है, ये प्लस 75 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 100 माइक्रोकूलम है, ठीक है, तो इंटू रूट 75 इंटू रूट 75, तो रूट 75 रूट 75 75 हो गया, ये 75 से ये 75 कैंसिल हो गया, एंड दैट अगेन कम्स 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन along D to A. अब इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू ये भी F और ये भी F. Now first we calculate the resultant of FAB and FAC. After calculating that resultant, we have calculated the resultant of FAD and the resultant of जो आया FAB और AC का जो resultant आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. Now to calculate the resultant of FAB and FAC, we are considering that resultant is F dash. तो F dash हुआ under root F square plus F square plus 2F square cos 120, क्योंकि FAB और FAC की जगह हमने FF प्लेस कर दिया, ये भी F है और ये भी है, तो that is under root F square plus 2F square cos 120, ये हो गया 2F square cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2F square minus F square, so F dash is equals to F, and F की वैल्यू है 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. नाउ अब हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा कि F dash की डायरेक्शन क्या है, तो F dash की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा is equals to B sin थीटा अपॉन A plus B cos थीटा, तो B जो है और A जो है वो F है, तो F sin 120 अपॉन F plus F cos 120, so that is F into root 3/2 upon F minus F/2. So tan थीटा हुआ आपका root 3F/2 into F/2, 2 से 2 कैंसिल, F से F कैंसिल, that is root 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. तो थीटा जो है वो 60 डिग्री कैसे कैलकुलेट किया, 120 है तो 120 का बाइसेक्शन हुआ, ये आपका F डैश लगेगा, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 हो जाएगा. नाउ FAD and F dash is mutually perpendicular to each other, तो now FAD that we have taken F and F dash that is also F are perpendicular to each other, so resultant of FA is F square plus 2F square cos 90. cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कैंसिल, ये हो गया रूट 2F स्क्वायर, ये हो गया रूट 2F, तो रूट 2 into 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, तो 9 रूट 2 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. अब tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये F और ये F, तो tan थीटा होता है y by x, y component upon x component, तो F by F that is 1, थीटा is 45. तो आपका रिजल्टेंट हुआ 9 रूट 2 into 10 to the power minus 3, and the resultant makes 45 degree
to the line which is parallel to BC. इस parallel line के about वो 45 degree form करेगा. So that is a way to calculate a force on a single charge due to the multiple charges. Different charges की वजह से हम force क्या करेंगे? Calculate करेंगे. Is that clear? That is all about the today's lecture.